Hello everyone. So welcome back to Kalama Ice Academy, and we are doing with this current age series in which we will be dealing with the most important topics. See, these are only selective topics. All exhaustive preparation you can get with this current age if you are taking the. See, this topic, before going to this topic, this is the area which is touching China border, right? So in that Ladakh region is there, Himachal Pradesh is there, Uttarakhand is there, then some portion of Sikkim is also there, as well as Arunachal Pradesh is there. तो ये सब सारे जो है वो चाइना से बॉर्डर लगता है. अब गवर्नमेंट क्या कर रही है कि गवर्नमेंट चाह रही है कि चाइना से ये लगा हुआ जो एरिया है, जो चाइना से जो लगा हुआ एरिया है, इन सब ये सब जो यहाँ पर जो विलेजेस हैं, इन सब का डेवलपमेंट होना चाहिए, राइट? इन सब का डेवलपमेंट होना चाहिए. व्हाई? बिकॉज यू नो द हिडन एजेंडा, बिकॉज एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम गवर्नमेंट मे हैव टू गो देयर टू प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी ऑफ आवर कंट्री, राइट? क्योंकि चाइना का अटैक कहीं से भी आ सकता है. तो वो तो एक हिडन एजेंडा है, बट द पर्पस गवर्नमेंट इज सेइंग, द गवर्नमेंट सेड दैट कि इस यहाँ पे जो एरियाज, इस बॉर्डर रीजन पे जो एरियाज हैं, सो दे आर मोर बैकवर्ड इन नेचर. देयरफॉर टू अपलिफ्ट दोज पर्सन और दोज विलेजेस इन रेस्पेक्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन रेस्पेक्ट ऑफ हेल्थ, इन रेस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, इन एवरी एस्पेक्ट, राइट? So what the government has done, the government has launched a program that is called as the Vibrant Village Program, right? Vibrant Village Program. Under this Vibrant Village Program, several kinds of initiative have been done. For example, this Vibrant Village, these kinds of villages, they will be linked with the, this Vibrant Village Program will be linked with the PM Gati Shakti Mega Project. PM Gati Shakti Mega Project आपको पता है कि हर एक तरह के प्रोजेक्ट्स के, चाहे वो रेलवे हो, रोडवेज हो, शिपिंग हो, तो इन सब सारे तरह के प्रोजेक्ट्स को वो एक सिंगल पॉइंट्स प्रोग्राम है जो लिंक करता है, राइट? सो दैट इज पीएम गति शक्ति मेगा प्रोजेक्ट्स. तो इससे अब वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को भी लिंक कर दिया गया है. सो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम अलोंग विद द चाइना बॉर्डर टू बी इंटीग्रेटेड विद द पीएम गति शक्ति मेगा प्रोजेक्ट्स. ये न्यूज में था. अलोंग विद दैट एक और चीज जो न्यूज में था, वो 362 बॉर्डर विलेजेस टू गेट 4G कनेक्टिविटी बाय जून ऑफ 2025, क्योंकि ये जनवरी 2025 का न्यूज है. तो क्या होगा कि 362 जो बॉर्डर विलेजेस हैं उसको 4G कनेक्टिविटी के थ्रू जोड़ा जाएगा, एंड दिस विल बी पार्ट ऑफ द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम. सो एज दिस प्रोग्राम वाज कंटिन्यूअसली इन द न्यूज, देयरफॉर दिस प्रोग्राम बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर यूपीएससी प्रीलिम्स 2025. सो लेट्स सी व्हाट इज देयर इन द प्रोग्राम. So this vibrant village program, these programs are there for those areas or the states or the union territories which are in contact, which are sharing the border with the China, right? तो ये यहाँ पर ताकि उस बॉर्डर को अच्छे से सिक्योर किया जा सके. सिमिलरली जो वहाँ पे जो लोग बैकवर्ड हैं उनके लाइफ को चेंज किया जा सके, उनके लाइफ को वाइब्रेंट बनाया जा सके, राइट? सो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इज देयर. This will be a centrally sponsored scheme. That means there will be contribution from the center as well as the states, right? जो center sector scheme होता है, you know that in that kind of scheme, central government contribution is 100%. But in centrally sponsored scheme, the central government contribution is there, along with that state government contribution is also there, right? And it was announced in Union Budget 2022-2023. Right. Recently, the budget allocation has further increased. Therefore, it was also in the news. Then, for the development of the villages on the northern border. So, northern border where in Ladakh region, in Himachal Pradesh, in Uttarakhand, and in Arunachal Pradesh. So, these are the borders which will be included. That is in the 4 states and 1 union territories, this northern border which is sharing the border with the China. So there, to improve the life of the people over there, because those
people are living in lots of backwardness. There is no hospitals, there is no schools, proper schooling facilities. The people are not getting enough employment, right? Roads are not there. So such kinds of things has to change now, right? So for the development of these kinds of villages, so that the overall the quality of life of in that particular villages should be changing. Now, so in this Himachal Pradesh, Uttarakhand, Arunachal Pradesh, Sikkim and the Ladakh will be covered. Okay, so or in total there will be 2963 villages. In total 2963 villages will be covered, but in the first phase only 663 villages will be covered, and after looking at the success of those villages, the new villages will also be taken up. Whole target is 2963 villages has to be covered. But one thing you should be remembering, that this program, that is Village Vibrant program, is not overlapping with the Border Area Development Program. Border Area Development Program को जो सेटअप, वो जो लॉन्च किया गया था, वो अराउंड 1986-87 के टाइम पर किया गया था, और ये किया गया था ऐसे बॉर्डर एरिया जो पाकिस्तान से लगता है, पाकिस्तान से जो लगता है उस डायरेक्शन में, वहां पर पाकिस्तान से जो लग रहा है और जो 50 किलोमीटर रेडियस पे है, जो इंटरनेशनल बॉर्डर जो पाकिस्तान से लग रहा था उसके 50 किलोमीटर रेडियस पर जो थे, तो इनिशियली वहां स्टार्ट किया गया था. जैसे जम्मू एंड कश्मीर हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, इन सब सारे स्टेट्स में स्टार्ट किए गए, राइट. बट लेटर ऑन जब इस स्कीम का सक्सेस देखा, तो सरकार ने सोचा कि क्यों ना हम बाकी जो बॉर्डरिंग एरियाज हैं उनको भी इसके अंदर लिया जाए. सो नाउ द स्कीम इज रनिंग 17 states and in 111 districts. It is there in the 111 districts. So this border area development program, अब यहाँ पर भी क्या किया जाता है, यहाँ पर भी हेल्थ एस्पेक्ट से, लिटरेसी एस्पेक्ट से, इंफ्रास्ट्रक्चर एस्पेक्ट से, स्किल डेवलपमेंट एस्पेक्ट से, हाउसिंग एस्पेक्ट से, डिफरेंट एस्पेक्ट से यहाँ पर भी डेवलप कराया जाता है, राइट. लेकिन ये दोनों प्रोग्राम जो है वो इंटरमिक्स नहीं होगा. देयर विल बी नो ओवरलैप ऑफ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम. मतलब एक विलेज जो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर आता है उसको वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंदर नहीं काउंट किया जाएगा, वो नहीं इंक्लूड होगा, राइट. बिकॉज ओवरऑल दोनों में डेवलपमेंट का ही पर्पस है, राइट. सो दैट इज देयर. नाउ व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट इज सेइंग. ठीक है, तो गवर्नमेंट इज जो बोल रही है टू आइडेंटिफाई एंड डेवलप द इकोनॉमिक ड्राइवर्स बेस्ड ऑन द लोकल्स. तो उस एरिया में क्या लोकल रिसोर्सेज है, क्या नेचुरल रिसोर्सेज है, क्या ह्यूमन रिसोर्सेज है, उसके अकॉर्डिंग वहां पर उस बॉर्डर विलेजेस को डेवलप किया जाएगा, राइट. सो दैट वट एवर विल बी द बेस्ट एंड वट एवर द बेस्ट विल बी देयर फॉर द पीपल ऑफ दैट विलेजेस, दैट विल बी डन बाय द गवर्नमेंट, राइट. प्लस ये जो डेवलप किया जाएगा वो हब एंड स्पोक मॉडल पे. हब एंड स्पोक मॉडल क्या होता है, इस तरह की चीज होती है, ठीक है. हब एंड स्पोक मॉडल पे डेवलप किया जाएगा, उसपे सोशल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप किए जाएंगे, यूथ का एम्पावरमेंट होगा, वुमेन की एम्पावरमेंट होंगे, स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप टाइप की चीजें जो है वो प्रमोट की जाएंगी. सो दैट सम काइंड ऑफ इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, माइक्रो स्केल इंडस्ट्री, तो इस तरह की चीजें जो है वो वहां पर ही खोले जा सके, इन विलेज के अंदर ही खोले जा सके, राइट. देन अदर ऑब्जेक्टिव्स विल बी टूरिज्म पर्पस के लिए भी, बिकॉज पीपल वांट टू विजिट इन द बॉर्डरिंग एरियाज, है ना. जो चाइना का जो से जो बॉर्डर लग रहा है वहां पर खास करके, वैसे भी ये जो टूरिस्ट प्लेसेस बहुत ज्यादा हैं इन अरुणाचल प्रदेश, इन उत्तराखंड, इन हिमाचल एंड देन इन सिक्किम, ऑल्सो इन लद्दाख. सो जब ये बॉर्डर पे जो विलेज है वहां पे लोग वैसे भी जाना चाहते हैं कि इस साइड के लोगों का क्या लाइफ स्टाइल है एंड उस साइड के लोगों का क्या लाइफ स्टाइल है, राइट. तो ये देखने के लिए बहुत सारे लोग उत्सुक होते हैं. सो टूरिज्म पर्पस के लिए भी ऑल्सो, बिकॉज व्हाट इज द लोकल कल्चर, व्हाट काइंड ऑफ हेरिटेज दे आर हैविंग, व्हाट काइंड ऑफ ट्रेडिशन, व्हाट काइंड ऑफ कस्टम दे आर फॉलोइंग, व्हाट आर काइंड ऑफ नॉलेज दे आर हैविंग. तो इन सब चीजों को देखने के लिए टूरिस्ट गेट्स अट्रैक्टेड, राइट. सो टू फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ द टूरिस्ट ऑल्सो,
दिस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम विल बी टेकिंग केयर। इसमें क्या होगा कि अब अलग अलग तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किए जाएंगे, प्लस इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड अदर काइंड्स ऑफ फीचर्स विल बी प्रोवाइडेड टू दिस काइंड्स ऑफ विलेजेस, ताकि क्या हो सके कि ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पे विजिट कर पाएं और वहां पे जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, उनका भी लाइफ स्टाइल में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आना चाहिए। सो दिस इज द मेन पर्पस ऑफ दिस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम एंड ऑल्सो डेवलपमेंट सस्टेनेबल इको एग्रीकल्चर बिजनेस। सो business will be there on the basis of what, environment as well as the agriculture। तो इको एग्रीकल्चर बिजनेस वहां पे सेटअप किए जाएं, इस सेटअप किया जाए कि वन विलेज वन प्रोडक्ट। तो इतने सारे जो विलेजेस जो आइडेंटिफाई किए गए 2900 से ज्यादा विलेजेस, तो इन सबको क्या किया जाएगा कि यहाँ पर एक विलेज एक प्रोडक्ट, वन विलेज वन प्रोडक्ट स्कीम को प्रमोट किया जाएगा, राइट, ताकि हर एक विलेज कुछ नए प्रोडक्ट के लिए फेमस हो सके, राइट। सो दैट इज देयर। So community based organization will be there, cooperative NGOs will be there, so all these kinds of things is there। So overall what will be there under the vibrant village programs? So northern region में, northern area में ऐसे जगह जो ऐसे states, ऐसे union territories जो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है, जैसे लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हो, सिक्किम हो या अरुणाचल प्रदेश हो, यहाँ पर जो बॉर्डर से जो सटा हुआ विलेजेस है, एरियाज हैं, उनको डेवलप कराने की गवर्नमेंट कोशिश करेगी इन डिफरेंट, इन इंफ्रास्ट्रक्चर एस्पेक्ट्स, इन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एस्पेक्ट, इन अदर काइंड्स ऑफ थिंग्स गवर्नमेंट कोशिश करेगी ताकि वहां के लोगों का लाइफ स्टाइल इंप्रूव हो सके, वहां पर टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके, उन लोगों को बेटर से बेटर सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके, जैसे कि एक बाकी पार्ट ऑफ द कंट्री में हो रहा है ना। तो ये सब सारा मेन ऑब्जेक्टिव है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का। इसके बारे में बहुत ज्यादा अभी तक पता नहीं है, ठीक है, तो इतना इंफॉर्मेशन भी मोर देन सफिशिएंट है। यहाँ से आप काफी अच्छे से एलिमिनेट कर सकते हो द यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में तो, राइट। देन व्हाट हैज बीन द आउटकम जब से ये लॉन्च हुआ है, क्योंकि 2022 वाले बजट से ये लॉन्च कर दिया गया है ना, तो जब से ये लॉन्च हुआ है तब से क्या हुआ है कि ऑल वेदर कनेक्टिविटी हुए, रोड से ऑल वेदर कनेक्टिविटी मीन्स चाहे वो बरसात हो, चाहे वो विंटर हो, चाहे वो समर हो, किसी भी सीजन में जो है वहां तक आप विजिट कर सकते हो। सो ऑल वेदर रोड्स हैव बीन मेड इन दिस काइंड्स ऑफ विलेजेस, जो फर्स्ट फेज में जो विलेजेस हैं उनको। देन ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी हैव बीन प्रोवाइडेड, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी हैव बीन प्रोवाइडेड। अब ये जो है ना वो नेचुरल रिसोर्स से भरा पड़ा है ना। ऐसे रीजन है जहां पर सोलर एनर्जी का टैप किया जा सकता है, विंड एनर्जी का टैप किया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर भी फॉसिल फ्यूल का ही यूज किया जाए। सो सोलर एनर्जी का यूज करके, विंड एनर्जी का यूज करके, इन सब का यूज करके 24/7 इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है। ऑल्सो एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी, ऐसे आप देखोगे कि जो रिमोट एरियाज है वहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा लिमिटेड होता है। सो अंडर दिस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, इवन इन दोज रिमोट एरियाज, इवन those area which are touching the China border, वहां पर भी इंटरनेट फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है और मोबाइल कम्युनिकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। एंड ऑल्सो टूरिस्ट सेंटर्स हैव बीन मेड, मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ एस्पेक्ट्स के लिए जो है हेल्थ सेंटर्स, वेलनेस सेंटर्स, तो ये सब सारे तरह के सेंटर्स वगैरह जो है बनाए गए हैं, स्कूल्स भी बनाए गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया गया है। तो अलग अलग तरह से कोशिश किया गया है कि ये सब जितने भी रीजन है इन सब का डेवलपमेंट हो सके, राइट। सो दैट वाज अबाउट द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स 2025। वी हैव कवर्ड दिस काइंड्स ऑफ टॉपिक्स, एक्चुअली वी हैव कवर्ड ऑल द करंट अफेयर्स very exhaustively under the current age program, and which has multiple aspects because you will be given the material. The material will be having the compilation of the newspapers, then there is Yojana magazines, then some kind of journals as well, that like for example science reporters, then some down to earth. So such kinds of things have been taken into the consideration to compile the material. Based on that material there will be workbook sessions, so there are 13 workbook sessions. For that there will be 13 tests as well. ये सेशन होगा प्रॉपर क्लास में पढ़ाया जाएगा। देन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ईयरली कंपाइलेशन लेना चाहते हैं, सो फॉर दैट
केस रिपीट सेशंस आर देयर फॉर 8 मॉड्यूल, दैट इज पॉलिटी, गवर्नेंस, इकोनॉमी, ज्योग्राफी। तो पूरे 1.5 साल का करंट अफेयर्स इसमें कराया जाएगा। सो ओवरऑल देयर यू विल बी गेटिंग द 23 tests including the 2 full length tests, then there are 8 sectional tests, right, and then there are 13 workbooks, right. So all these things you will be getting. So this will be a 1-point solution for around 40 to 50% of the question of the UPSC prelims 2025, because करंट अफेयर से डायरेक्टली क्वेश्चन जो इशू बेस्ड है वो तो 20-25 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, बट फॉर द रेस्ट 20 to 25 क्वेश्चंस द यूपीएससी इज पिकिंग अप दोज टॉपिक्स फ्रॉम द करंट अफेयर्स ओनली, भले ही वहां से स्टैटिक पोर्शन ही क्यों ना पूछा हो। तो ये करंट एड्स प्रोग्राम में इस तरह से हम लोगों ने डिजाइन किया है कि आपका करंट टॉपिक्स एज वेल एज द स्टैटिक टॉपिक्स भी कवर करेंगे। सो अराउंड 40 to 45% ऑफ द टॉपिक which will be miss questions which will be there in the UPSC. So we are expecting to upon that. So that is all from my side in this session. Please keep reading, keep revising, and we meet soon with the next topic. Thank you very much.